students. So now let us start accounting in the books of transferee company. Accounting in the books of transferee company. तो हमने ये लास्ट अकाउंटिंग वाले लेक्चर में ही देखा था. अकाउंटिंग का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन एंड अब्सॉर्प्शन, तो in that at that time only I had told you that basically the accounting comes in the books of two people. One is transferer and other one is ट्रांसफरी. दोनों के बुक्स में आ सकता है, राइट. तो फ्रॉम ट्रांसफरर के बुक्स में व्हाट हैपेंस, द एसेट्स आर सोल्ड आउट. बेसिकली एसेट्स बाहर जाते हैं एंड देयरफॉर वी प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, by following 6 steps accounting flow, right. The 6 steps I had given you written over here. See, check, these were the 6 steps involved, right. But in the books of transferee I had told you that two types of questions can be expected. First is passing journal entries transferee के books में, that is assets are coming in. ट्रांसफरर से assets हम ले रहे हैं, right. So assets are coming in, तो वो वाले 3 journal entries. If you remember the business purchase वाला thing, राइट, बिकॉज बिजनेस इज कमिंग इन, राइट. एक तो वो पूछ सकते हैं आपसे, या फिर द बैलेंस शीट ये पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन. दैट इज एसेट्स जो पहले एग्जिस्टिंग थे मेरे वो तो है, ऑब्वियसली वो तो है, प्लस जो एडिशनल एसेट्स आए, एडिशनल लाइबिलिटीज आए, एडिशनल बिजनेस आया, उसके अगेन जो परचेज कंसिडरेशन इशू किया, वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, वो बनाओ. ये आ सकता है, राइट. सो नाउ let us solve few sums on this accounting in the books of transferee company. Fine, let us start. Like I have selected one or two examples so that it can cover almost all the things. So let us start with example 12. We have solved this in class. Let us solve it again. Example 12. First of all, before starting, purchase method लिखा है. If you remember, thing is that there are two methods of recording. Like in the books of transferee there are two methods, right, which can be used. First is, tell me pooling of interest method, right. When amalgamation is in nature of merger, we use pooling of interest method, right. And when amalgamation is in nature of purchase, we use purchase method. I hope you remember this. Fine. So I mean to say कि which method and accounting in these both of these methods is different. As such it is not very different, but it is different by now, I had told you at what point it differs, right. So just to tell you again, it is accounting would be same, like the entries passed would be same. The difference would be first of all, tell me when is POI method used. That is pooling of interest method. Pooling of interest method is used when accounting या फिर amalgamation is in nature of merger. जब merger के nature में होगा, in that case we will be using pooling of interest. सर इसके features क्या है? The features are, सर यहाँ पे reserves and surplus भी take over होते हैं अगर बोला है तो, and अगर कुछ difference है तो general reserve में अपन adjust करते हैं, and सर assets and liabilities अपन book value पे take over करते हैं, right. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं. एट द सेम टाइम परचेज मेथड में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है. अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर रिजर्व्स कोई टेक ओवर हो रहा है तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट की एक एंट्री पास होती है. जनरल रिजर्व नहीं आता सर, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल में डिफरेंस एडजस्ट होता है, एंड बुक वैल्यू पे नहीं बट फेयर वैल्यू पे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं. फेयर वैल्यू पे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं. तो मोटा मोटा दीज वर द मेन डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द मेथड. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 12 सॉल्व करेंगे जिसमें बोला गया है कि यूज परचेस मेथड, ये वाला परचेस मेथड यूज करना है, ये बोला है. फाइन. सो दैट मीन्स अगर परचेस मेथड यूज करना है, दैट मीन्स अमालगमेशन मे नॉट बी इन फॉर्म ऑफ मर्जर बट इट वुड बी इन फॉर्म ऑफ नेचर, इट वुड बी फॉर्म ऑफ परचेस. समझ रहे हैं? सो लेट अस सी सर यहाँ पे अगर नेट एसेट्स में एंड द परचेज कंसिडरेशन में कोई डिफरेंस आया तो सर कहाँ पे एडजस्ट होगा? जनरल रिजर्व में एडजस्ट होगा क्या? नो, इट वाज नॉट एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व बट इट वुड बी एडजस्टेड इन कैपिटल रिजर्व. इफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट आया तो गुडविल. आई होप यू आर गेटिंग इट. बैलेंस शीट पे एसेट्स कौन से वैल्यू पे टेक ओवर होंगे सर? फेयर वैल्यू पे, नॉट द बुक वैल्यू. समझ में आ रही बात? अगर सर रिजर्व्स टेक ओवर हुए तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. फाइन. लेट अस
Let us start. Let us read the example. A Limited and B Limited were amalgamated on following on were amalgamated on and from 1st of April 21 a new company C Limited was formed to take over in the business. That means ये amalgamation है, new company form हुई है, right? The balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 21 are given below. Balance sheet दी है दोनों की. Let us see. देखो यहाँ पे balance sheet है. Equities, liabilities, we are having share capital, we are also having preference share capital. Then कुछ reserves है अपने पास. देन डिबेंचर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल है. एसेट साइड पे देखूँ तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल्स एंड बैंक. फाइन, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेट अस सी 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय सी लिमिटेड. मतलब डिबेंचर्स भी टेक ओवर हो रहे हैं, राइट? इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर दिस थिंग विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर पीसी. इसको क्या पीसी का कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे? क्या नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज इट इज पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स. ये हमने कल पीसी के प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व किए तभी देखा था, राइट? तो ये पीसी का फॉर्म पार्ट नहीं बनेगा. इट वुड बी जस्ट पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स. कितना पेमेंट करना है देखो ना. आर डिस्चार्ज बाय सी लिमिटेड इशूइंग सच नंबर नहीं बताया, such number of its 15% debentures of rupees 100 each so as to maintain the same amount of interest. मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहना चाहिए. देखो ना यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो, चेक कहाँ पे है डिबेंचर्स, ये रहे डिबेंचर्स. कितना परसेंट इंटरेस्ट है करंट में? 10%. 10% ऑन आई गेस 30,000. ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कौन किसको टेक ओवर कर रहा है? A Limited is taking over business, right? Sorry, C Limited is taking over the business of A and B both. So in this case, who is the transferor? A Limited as well as B Limited both are transferor and C Limited is transferee company. अपन को किसके बुक्स में अकाउंटिंग करनी है? इन द बुक्स ऑफ C Limited. इन द बुक्स ऑफ C Limited. तो व्हाट वी वुड डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ C Limited, ट्रांसफरी कंपनी. तो ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट करेगी, ए को भी करेगी, बी को भी करेगी, राइट? ए को भी करेगी और बी को भी करेगी. ए के डिबेंचर्स देखो कितने हैं? 60 लाख है, राइट? ए के डिबेंचर्स 60 लाख है, बी के डिबेंचर्स 30 लाख है. उस पर अगर करंट में मैंने इंटरेस्ट निकाला 10% से, ए लिमिटेड 60 लाख है, बी लिमिटेड 30 लाख है. अगर मैंने इस पर इंटरेस्ट निकाला तो इंटरेस्ट आएगा 6 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली 10% से, राइट? तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो उतने डिबेंचर्स इशू करो, 15% डिबेंचर्स इशू करने हैं 100 रुपीज़ के. तो इतने डिबेंचर्स इशू करो सच दैट इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा. मतलब 15% से भी इंटरेस्ट दिया ना आपने तो 6 लाख ही इंटरेस्ट बनेगा. अगर ए को है तो ए को 6 लाख बनेगा, बी को जो दिया उसको 3 लाख बनेगा. तो ऐसा क्या है अमाउंट? टेल मी ऑन व्हाट. लेट अस अज्यूम कि एक्स अमाउंट का इंटरेस्ट पे एक्स अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए, एक्स अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए. लेट अस अज्यूम कि x अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए, तो x एंड इसको y अमाउंट के किए, तो x इंटू 15% अगर मैं करूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 6 लाख. दैट शुड बी इक्वल टू 6 लाख. 6 लाख कहाँ से आया सर? यहाँ से देखो ऊपर ये वाला, राइट? एंड y इंटू अगेन 15% करूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू अगेन ऊपर वाला 3 लाख. तो टेल मी व्हाट इज दैट अमाउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y. एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल फर्स्ट एक्स के केस में इट विल कम टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 15%. सो दैट इज आई गेस 40 lakhs. 6 lakhs divided by 15% is 40 lakhs. Yes, 40 lakhs. And then y को अगर 3 लाख डिवाइडेड बाय 15% करोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15% करोगे तो वो आंसर कितना आएगा देख लो, जो कुछ भी आ रहा है. तो दैट वुड बी I guess 2 lakhs. That would be I guess 2 lakhs. Fine. तो इतने डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे. इतने डिबेंचर्स इशू हो गए. आई एम सॉरी, ये गलत हो गया. इट वुड बी आई गेस 20 lakhs या समथिंग. चेक करो ये जो कुछ भी है. फाइन. आई जस्ट मीन टू से आप इतने के डिबेंचर्स इशू करोगे, इतने के डिबेंचर्स इशू करोगे. कितने? 40 lakhs एंड 20 lakhs. कैसे आया सर? देखा हमने इंटरेस्ट हमें सेम रखना है, इसलिए ये 40 लाख. जब हम 40 लाख दे देंगे ए को
तब उस पर 15% इंटरेस्ट निकालो, 6 लाख आएगा, 6 लाख आएगा। तो जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट रहा, समझा। तो दे हैड टोल्ड यू सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए ये सब हमने किया था आमचाम उल्टा सीधा कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। फाइन। नाउ preference shares. Preference shareholders of two companies are issued equivalent number of 15% preference shares, meaning क्या मतलब, एक ही मिनट, गिव मी अ मिनट। फाइन, सी check. Preference shares of two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of C Limited at the price of 150. मतलब equivalent number मतलब क्या, जिनके उतने उनके पास अभी जितने शेयर प्रेफरेंस शेयर्स है उतने ही प्रेफरेंस शेयर्स हम उनको इशू करेंगे। मतलब अभी कितने हैं इनके पास, 300 और 200 lakhs के, राइट। सो हर एक का प्राइस है 100। सो दैट मीन्स कितने हैं, 300। मतलब ए लिमिटेड वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कितने हैं, 300 lakhs टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 पर शेयर इक्वल्स टू 3 lakhs। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट। और बी लिमिटेड वालों के पास 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है। अपन उतने ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, 3 lakhs एंड 2 lakhs। दे आर सेइंग यू टेल चेक इशूड इक्विवेलेंट नंबर, मतलब 3 lakhs एंड 2 lakhs ही इशू करेंगे, सिर्फ 150 पे करेंगे अभी। 3 lakhs एंड 2 lakhs एट द रेट ऑफ 150, इतने पे इशू होगा, इतने पे इशू होगा। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। तो सर क्या इस प्रेफरेंस शेयर्स को अपन परचेज कंसिडरेशन में लेंगे? यस लेंगे, बिकॉज इट इज पेमेंट टू इक्विटी, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स बेसिकली, राइट। इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, समझ में आ रही है बात। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर पार्ट ऑफ योर पीसी। Then C Limited will issue 5 equity shares for each equity share of A Limited. A Limited का हर एक इक्विटी शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर्स इशू होंगे। जब देखो ना, ए लिमिटेड के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी शेयर्स, देखो 800 लाख का कैपिटल है, 100 रुपीज़ का शेयर है, दैट मीन्स 8 लाख रुपीज़ नंबर ऑफ शेयर्स है, 8 लाख रुपीज़ नंबर ऑफ शेयर्स है। एंड हर एक शेयर के लिए, नहीं सॉरी, कितने बोल रहे हैं, देखो विल बी इशू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर, मतलब हर एक शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो अभी टोटल करंट में कितने शेयर्स है, 8 लाख शेयर्स है, ये 8 लाख इंटू 5 होगा, हर एक शेयर के लिए 5 शेयर, सो दैट मीन्स 8 5 40 lakhs, टोटल 40 lakhs का शेयर कैपिटल इशू होगा। 40 lakhs का शेयर कैपिटल नहीं, 40 lakhs के इक्विटी शेयर्स इशू होंगे ए लिमिटेड के लिए, सी लिमिटेड इशू करेगी ए लिमिटेड के लिए, समझ रही है बात को। एट द सेम टाइम बी लिमिटेड का कैलकुलेट करो, एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर्स, तो बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स देखो 750 lakhs डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 7.5 लाख, 7.5 लाख शेयर है नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू हर एक शेयर के लिए 4 शेयर, सो इनटू 4 किया मैंने तो 30 lakhs आया, 30 lakhs आया। टोटल 30 लाख शेयर्स इशू होंगे बी लिमिटेड के लिए। सो टोटल अगर मैं देखूँ तो सी लिमिटेड इशू करेगा 40 lakhs प्लस 30 lakhs, ऐसे करके 70 lakhs के इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, इनटू हर एक का प्राइस देखो 10 रुपीज़ है, तो 700 lakhs का उनका शेयर कैपिटल बनेगा। आई होप आपको समझ रहा है। इशू 30 पे हो रहा है तो ऊपर वाला 20 सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैंने कल भी बताया था। फाइन, इशू 30 को हो रहा है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से। फाइन, देन ये सब अभी कैलकुलेशन अपन करके रखने का, एंड देन वाइल सॉल्विंग द आंसर ये फटाफट लिख देने का। फाइन, नाउ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड फॉर 4 more years, दैट मीन्स दे आर सेइंग, जो अभी इनके बुक्स में ट्रांसफरर कंपनीज के बुक्स में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिख रहा है, ये वाला, ये देखो ये, दिस रिजर्व इज टू बी केप्ट मोर, मतलब लाइक कंटिन्यू होगा, ये रिजर्व कंटिन्यू होगा। तो नए वाले कंपनी के बुक्स में भी ये रिजर्व दिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो अभी देखो ये क्या रिजर्व कैरी ओवर अगर करने हैं, रिजर्व अगर टेक ओवर करने हैं, तो इन दैट केस कौन सी मेथड है, ये देखो ये कौन सी मेथड थी, ये कौन सी मेथड थी, परचेस मेथड थी, परचेस मेथड थी। यहाँ पे कहाँ पे भी तो आपको बताया भी गया होगा, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करने का, देखो ये देखो, बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन बेसिस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस, बोला है परचेस मेथड है। तो परचेस मेथड में अगर रिजर्व्स कुछ टेक ओवर करना है तो क्या हम जनरल रिजर्व को एडजस्ट करते हैं या हम अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं, चेक ओवर हियर। परचेस मेथड में
अपन अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये रहा यहाँ पे परचेज मेथड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस गुडविल कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आ रही है बात? आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। फाइन। एंड आई हैड टोल्ड यू इसमें यू आर व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू डू? सी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड, राइट? तो सी लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। फाइन। हमने क्लास में जब सॉल्व किया था वी हैड सॉल्व्ड इट बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज एंड देन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। फाइन। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हमने किया था, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा आया तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाओगे, राइट? तो इन दैट केस कैसी बनानी है बैलेंस शीट? आई विल टेल यू। तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आई हैड टोल्ड यू। मैं सारा रब कर देता हूँ। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आई हैड टोल्ड यू। बैलेंस शीट ऑलवेज इज प्रिपेयर्ड लाइक बैलेंस शीट बिफोर अमालगमेशन प्लस द इफेक्ट ऑफ 3 जर्नल एंट्रीज इक्वल्स टू बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, राइट? तो अपन अभी वही करेंगे। व्हाट इज बैलेंस शीट बिफोर अमालगमेशन? सर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये रही। दिस इज, अभी लेट्स से बी की पहले बनाते हैं, राइट? बी की पहले बनाते हैं बिकॉज क्लास में ए की मैंने बनाई थी, बी की आपको बनाने दी थी, तो अभी बी की बनाते हैं। फाइन। सो ये दिस इज द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, दिस इज द बैलेंस शीट एसेट साइड। ये भी रहेगा, ये रहेगा, ये पूरा। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, राइट? ये पूरा इतना पार्ट, राइट? तो ये बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड है। फाइन। तो ये बैलेंस शीट बिफोर अमालगमेशन है, प्लस इसमें 3 एंट्रीज का इफेक्ट कर देंगे, अभी 3 एंट्रीज क्या करने हैं? अपने दिमाग में एंट्रीज पास करने हैं, पहली एंट्री क्या पास करते हैं अपन? इफ यू रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर ही कर रहे हैं। ट्रांसफरर के बुक्स में रियलाइजेशन को एसेट सारे ट्रांसफर होते हैं, बट ट्रांसफरी के केस में तो बिजनेस अंदर आता है ना, बिजनेस कम्स इन, राइट? सो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट करते हैं, राइट? एंड बट व्हाट अमाउंट डू वी डू इट? एट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट? एंड अल्टीमेटली बाद में जाके दोनों अकाउंट अपन नील करते हैं, दोनों अकाउंट वी नलीफाई बोथ द अकाउंट्स, राइट? सो इन दैट केस यहाँ पे इस एंट्री का वैसे भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज अल्टीमेटली अकाउंट्स नील होते हैं, बट द थिंग इज इस एंट्री का अमाउंट्स अपने को लगेंगे नेक्स्ट एंट्रीज में। अमालगमेशन बिजनेस परचेज अकाउंट लिक्विडेटर अकाउंट को कितना बैलेंस है वो नलीफाई करने के लिए कितना बैलेंस है वो तो पता चलेगा, तो उसके लिए अपने को परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, राइट? सो लेट अस आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एंड परचेज कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी है? ये रही। इफ यू ऑब्जर्व over here in this question, purchase consideration is calculated by way of net purchase method use की है, payment method, net payment method, sorry purchase method नहीं, net payment method, राइट? नेट एसेट वगैरह निकालने को कुछ नहीं बोला है। दे आर टेलिंग कि मैंने डिबेंचर होल्डर्स को इतना पे किया। विल आई कंसिडर दिस पॉइंट इन कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन? नो, आई विल नॉट कंसिडर बिकॉज इट इज नॉट अ पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। सेकंड, विल आई कंसिडर दिस पॉइंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? येस, आई विल कंसिडर पेमेंट कितना हुआ है। विल आई कंसिडर दिस थर्ड? येस, आई विल कंसिडर। एंड फोर्थ तो यार पेमेंट है ही नहीं, ये तो पेमेंट नहीं है तो ये कंसिडर होगा नहीं। तो ये और ये पॉइंट परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम कंसिडर होगा, nothing else. Fine. So let us first compute purchase consideration. Paid to preference shareholders. A लिमिटेड का अलग निकालेंगे, बी लिमिटेड का अलग निकालेंगे। यहाँ पे सी लिमिटेड इज टेकिंग ओवर बोथ द कंपनी, सो सी लिमिटेड पेमेंट कर रही है तो ए को अलग करेगी, बी को अलग करेगी ना। सो इन दैट केस योर फर्स्ट नोट वुड बी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये रही। फर्स्ट यू विल कंप्यूट इट सेपरेटली फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट किया है? चेक। हमने निकाला था, हमने रफ में निकाला था, बट स्टिल अगेन फिर से टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर मतलब जितने उनके हैं और उतने ही। तो देखो ना उनके प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 100 रुपीज़ के 300 lakhs एंड 200 lakhs टोटल है। दैट मीन्स 3 lakhs एंड 2 lakhs इन नंबर्स, राइट? तो 3 lakhs एंड 2 lakhs एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स है इन नंबर्स, उतने के ही इशू करेंगे, राइट? तो 3 lakhs और 2 lakhs करेंगे एट द प्राइस ऑफ 150 पर शेयर, जिसका फेस वैल्यू 100 है, मतलब इसका फेस वैल्यू 100 है और 50 रुपीज़ क्या है ऊपर वाला? सिक्योरिटीज प्रीमियम।
सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो अब वी आर इशूइंग हाउ मेनी शेयर, चेक, we are issuing, we are going to issue 300 lakhs and 200 lakhs, per share 100 है वैल्यू, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स बन गए 3 lakhs and 2 lakhs, राइट, 3 lakhs and 2 lakhs बन गए शेयर्स, राइट। तो ये हर एक शेयर के लिए एक शेयर, तो 3 लाख शेयर्स के लिए कितने शेयर्स, 3 lakhs, 2 लाख शेयर्स के लिए कितने शेयर्स, 2 लाख, टोटल शेयर्स कितने बन गए 5 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, इतने शेयर्स अपन इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 150। आई होप आपको समझ रहा है। सो टोटल परचेज कंसिडरेशन इशूड वुड बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना इशू होगा, अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना इशू होगा, ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, कितना इशू होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनके खुद के 3 लाख शेयर्स, बी लिमिटेड के 2 लाख शेयर्स, इंटू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, इंटू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू होगा, प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपीज़, 2 लाख इंटू 50 रुपीज़। सो अगर इनका मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो फर्स्ट पहला आएगा 300 लैक्स, ये वाला, एंड ये आएगा प्लस 150 लैक्स, 300 लैक्स प्लस 150 लैक्स, टोटल कम्स टू 450 लैक्स। और ये आ जाएगा पहला 200 लैक्स, एंड ये आ जाएगा अगेन 200 लैक्स, सॉरी 100 लैक्स, टोटल 300 लैक्स, टोटल 300 लाख। तो इतना पेमेंट हो जाएगा, इतना पेमेंट हो जाएगी, ये 300 इज सिक्योरिटी, सॉरी एक शेयर कैपिटल, ये इज सिक्योरिटी, ये बाहर वाला सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये ऊपर वाला शेयर कैपिटल है, ये 100 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम है। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। लेट मी रब द थिंग्स। फाइन फाइन, तो नाउ चेक टोटल 450 लैक्स और 300 लैक्स इतना इशू होगा। देखो 450 लैक्स उनका भी आया और 300 लैक्स उनका भी आया, तो इतना इशू होगा परचेज कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नाउ चेक इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना होगा, चेक इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच शेयर एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच शेयर। ए लिमिटेड के केस में 5 देंगे एक के बदले में, और बी लिमिटेड के केस में 4 देंगे एक के बदले में, राइट। तो लेट अस सी कितने हो रहा है टोटल। देखो यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स देखना है, इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ के 800 और 750, दैट मीन नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 8 लैक्स एंड 7.5 लैक्स, इतने इक्विटी शेयर्स है, राइट। अभी हर एक के बदले में इक्विटी इसको कितनी मिलने वाली है 5 इंटू 5, और यहाँ पे हर एक के बदले में कितने मिलने वाला है 4, सो इंटू 4, सो टोटल अगर निकालूँ मैं तो कितने शेयर्स इशू होंगे 8 5 40 लैक्स एंड 7.5 इंटू 4 करूँ अगर मैं, तो दैट कम्स टू 30 लैक्स, 30 लैक्स। तो 40 लैक्स एंड 30 लैक्स इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, 40 लैक्स एंड 30 लैक्स कितने पे होंगे सर, देखो ना 30 रुपीज़, एक शेयर 30 पे इशू हुआ, बट उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगी, सो ऊपर वाला प्रीमियम सेम इसके जैसे, ऊपर फेस वैल्यू 100 थी, प्राइस 150 थी, सिमिलरली नीचे फेस वैल्यू 10 है एंड प्राइस 30 रुपीज़ है, फाइन। तो शेयर्स कितने इशू करने वाले हैं 40 लैक्स और 30 लैक्स, तो यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ, देखो इफ़ आई एम गोइंग टू इशू 30 लैक्स, 40 लैक्स एंड हर एक का फेस वैल्यू 10 है, तो दैट कम्स टू 400 लैक्स ऑफ शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हर एक का फेस वैल्यू 10 है, तो दैट कम्स टू 300 लैक्स ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। एट द सेम टाइम अगर 30 रुपीज़ पे इशू करने वाले 20 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो दैट विल अमाउंट टू देखो अगर 40 लाख शेयर्स इशू करूँगा, 40 लाख शेयर्स इशू करूँगा एट ₹20 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 40 इंटू 20 दैट कम्स टू 800 लैक्स, एंड यहाँ पे इंटू 20 करूँ तो दैट विल कम टू 30 इंटू 20 600 लैक्स। तो ये एक एंड ये एक अमाउंट 800 lakhs and 600 lakhs, check, this is the payment to equity shareholders 800 lakhs and 600 lakhs। आई एम सॉरी कुछ तो गलत हुआ,
800 लैक्स एंड 600 लैक्स कहाँ से आया? अच्छा फाइन, ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये ऊपर वाला शेयर कैपिटल भी तो है, ये शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों मिला के चेक करो, दोनों मिला के चेक करो कितना आ रहा है। 400 प्लस 800 कम्स टू 1200 लैक्स एंड ये आ रहा है आपका 600 प्लस 300 900 लैक्स। तो 1200 और 900 ये आ गए आपके फाइनल आंसर्स, 1200 एंड 900। ये हो गया टोटल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले मैंने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर किया था, वो गलती से हुआ था, इट वॉज अ सिली मिस्टेक। फाइन, सो दोनों कंसीडर करना है ना ऑब्वियसली। सो ये रहे आपका टोटल पीसी 450 प्लस 1200 1650 इज पेमेंट मेड टू ए लिमिटेड एंड 1200 900 प्लस 300 ये इज टोटल पीसी पेड टू बी लिमिटेड। तो ये आ गए टोटल पीसी, परचेज कंसिडरेशन आ गए ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के केस में। फाइन, सो इतने का परचेज कंसिडरेशन आया आपका, राइट, इतने का परचेज कंसिडरेशन आया आपका। नाउ आपको तो बैलेंस शीट बनाने हैं, देन व्हाई डू यू नीड परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन क्यों लगता है? फर्स्ट एंट्री पास करने को, फर्स्ट एंट्री पास की हमने दिमाग में, क्या बनी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितना? ए लिमिटेड करते टाइम 1650, बी लिमिटेड का करते टाइम 1200, राइट। तो ये एंट्री पास की अपने, लिख के करना है, क्या लिखना है यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स, चलो यहाँ पे एंट्रीज तो नहीं लिखते, एंट्रीज तो ठीक है, बट पीसी का अमाउंट तो एटलीस्ट लिखते हैं 1650 एंड 1200, 1650 एंड 1200, 1650 एंड 1200 ये आपका परचेज कंसिडरेशन बना। अभी आप दूसरी एंट्री पास करोगे, दूसरी एंट्री पास करते टाइम क्या करोगे? सारे एसेट्स को अंदर लाओगे एंड लाइबिलिटीज़ को भी अंदर लाओगे, उसके साथ बिजनेस परचेस अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे। इफ़ यू रिमेंबर, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी, एक लाइन छोड़ने का बीच में, टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेस अकाउंट। बिजनेस परचेस अकाउंट को कितना वैल्यू लोगे? 1650 एक लिमिटेड के केस में, बी लिमिटेड के केस में 1200, राइट। तो अभी बी लिमिटेड के अगर सपोज बी लिमिटेड का अपन पहले कर रहे हैं तो 1200 करोगे, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगे। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखो कितने हैं बैलेंस शीट में गिवन, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। तो ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे, राइट। तो सारे एसेट्स लेस लाइबिलिटीज ये बन जाएंगे आपके नेट एसेट्स, एंड इसका आप डिफरेंस लोगे विथ दिस व्हाट वी से परचेज कंसिडरेशन के साथ, दैट इज बेसिकली बिजनेस परचेज अकाउंट के साथ। एंड जो डिफरेंस आ जाएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे आप? जो डिफरेंस कहाँ आ जाएगा कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? कौन सा मेथड है देखो ना, कौन सा मेथड है देखो ना, द मेथड इज परचेज मेथड, देयरफॉर इट वुड बी ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। फाइन, आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट नेट एसेट्स। ये सेकंड एंट्री जो अपन पास करते हैं, ये एसेट्स अकाउंट डेबिट, चलो एंट्री में लिखता हूँ, तो शॉर्ट में लिखता हूँ, इवन दो शॉर्ट में लिखता हूँ, बट लेट अस सी लिखता हूँ। फाइन, सी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट करूँगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, बिजनेस परचेस अकाउंट को भी क्रेडिट करूँगा। बिजनेस परचेस को कितने से क्रेडिट करूँगा? ये इतने से, ये जो पीसीआई है ना उससे। अभी लेटेस्ट अज्यूम मैं बी लिमिटेड का कर रहा हूँ तो मैं बी लिमिटेड के सिर्फ वैल्यूज लिखता हूँ, ए लिमिटेड का भी करना है आपको। फाइन, तो एसेट्स, एसेट्स अभी चेक करते हैं कितने के डेबिट हुए, कितने के आए एसेट्स। देखो मेरे को बैलेंस शीट देखो, बी लिमिटेड का, ये रहा बी लिमिटेड का बैलेंस शीट। फाइन, मैं ये रब कर देता हूँ, ये बी लिमिटेड के बैलेंस शीट है, ये रहा। तो क्या मुझे लैंड एंड बिल्डिंग आई? यस 400, मैंने कैलकुलेटर पे अभी के लिए मैं सब लिख नहीं रहा तो मैं कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ 400। क्या प्लांट एंड मशीनरी आया? यस प्लांट एंड मशीनरी आया 250। क्या इन्वेस्टमेंट्स आए 50? यस आए 50। देन स्टॉक 250, यस 250। सन्ड्री डेटर्स 300, यस 300, एंड देन प्लस 50 प्लस 200, तो सारों का एडिशन कर देता हूँ, तो दैट विल कम टू 1500। ये इसका टोटल, ये पूरा एसेट साइड का टोटल आ गया। फाइन, तो 1500 के एसेट्स टेकन ओवर। और कुछ एसेट है क्या? परचेस मेथड यूज कर रहे हैं तो एसेट कोई बाहर की होगी तो भी अपन कंसिडर करेंगे। फाइन, तो कोई एसेट नहीं है, तो टोटल 1500 के एसेट्स कमिंग इन, राइट, दे आर कमिंग इन 1500 के एसेट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
500 के एसेट्स कमिंग इन एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज कितने के आ रहे हैं देखो, लाइबिलिटीज कितने के आ रहे हैं देखो, चेक चेक चेक। लाइबिलिटीज कितने हैं मेरे पास अभी यहाँ पे, तीन लाइबिलिटीज है 30 प्लस 120 प्लस 70। बट ये जो 30 था उसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज कि ये 30 का अपन उसको 30 नहीं इशू करने वाले, लाइबिलिटी में 30 का पूरा टेक ओवर नहीं कर रहा, आई एम टेकिंग ओनली, मतलब मैं पूरा का पूरा 30 ले रहा हूँ, बट आई एम 15% इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना, ये देखो ना यहाँ पे 15%। सो मैं उनको कितना इशू कर रहा हूँ, सी लिमिटेड, मैं सी लिमिटेड हूँ राइट, तो मैं बी लिमिटेड को कितना इशू कर रहा हूँ, ओनली 20 लैक्स। हमने कैलकुलेट किया था राइट, हमने ये कैलकुलेट किया था, वो 15 का एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर। थोड़ा बैकवर्ड जाके देखो, इफ़ यू वांट थोड़ा पीछे जाके देखो, हमने ये 20 लैक्स निकाला था, आई रिमेंबर। अगर आपको अभी भी देखना है तो कैसे निकाला था, 30 लैक्स इंटू 10% डिवाइडेड बाय 15% करो, ये आ जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15, दैट कम्स टू 20 लैक्स, ये वाला। तो हम 20 लैक्स के डिबेंचर्स उनको इशू करने वाले हैं, तो हमारे लिए लाइबिलिटी 30 की नहीं खड़ी होगी, 20 की ही होगी। फाइन, सो मैं ये कंसिडर करते टाइम 20 लैक्स करूँगा, सो 20 लैक्स प्लस नीचे वाला 120 लैक्स प्लस 70 लैक्स, टोटल कम्स टू 210 लैक्स, 210 लैक्स। तो इतनी की मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, 210 लैक्स की। फाइन, सो अभी डिफरेंस देखो, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज़ है, नेट एसेट्स कितने आए 1500 माइनस 210, टोटल 1290 के एसेट्स हमने टेक ओवर किए। ये देखो उन्होंने भी नेट एसेट्स टेकन ओवर निकाला, 1290 के एसेट्स टेक ओवर किए। एंड अगर मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकालूँ इस एंट्री में, दैट वुड बी 1290 माइनस 1200 इक्वल टू 90 रुपीज़ ऑन क्रेडिट साइड पे आ गए 90 रुपीज़। देखो ना बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये बैलेंसिंग फिगर है, 1500 को एंट्री तो टैली होनी चाहिए ना, ये बीच में लाइन क्यों छोड़ी है, उसीलिए तो छोड़ी है राइट। तो ये क्रेडिट पे आया, तो क्या अपन इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ट्राई टू थिंक। अगर ये मर्जर मेथड होता, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता, तो इन दैट केस अपन ये जनरल रिजर्व में लेके जाते, वी वुड हैव टेकन इट टू जनरल रिजर्व, बट सिंस इट इज अ परचेज मेथड वी विल टेक इट टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। सो ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया, आई होप आपको समझ रहा है, ये एंट्री पास हो गई। सेम इसी का कैलकुलेशन उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ पे किया, देखो चेक चेक चेक। ए लिमिटेड के सारे एसेट्स लिए, 1500 हमने भी लिए, देन 1290 का नेट एसेट्स आया उनका। ये देखो लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, 20 कंसिडर किया यहाँ पे उन्होंने, देखो 20। फाइन, समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझा है कि ये गुडविल कैसे आया, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। अपने अभी केस में कितना आया, कैपिटल रिजर्व 90 आया, ये देखो उन्होंने 90 का कैपिटल रिजर्व कंप्यूट किया यहाँ पे, 90 का कैपिटल रिजर्व। सिमिलरली सेम थिंग, ये 1500 सिमिलरली ए के केस में निकलेगा, 2000 आया। बी के केस, ए के केस में लाइबिलिटीज कितना है 40 प्लस 270 प्लस 150, टोटल करूँ तो 460 आ रहा है, मतलब 2000 के एसेट्स माइनस 460 के लाइबिलिटीज, दैट कम्स टू 1540 नेट, 1540 के नेट एसेट्स। ओके, मतलब नेट एसेट टेक ओवर किए 1540 के, बट उनको पेमेंट कितना किया देखो, 1540 के अगेंस्ट 1650 किया, तो एक्सेस पेमेंट किया, दैट मीन्स गुडविल। कितना गुडविल 110, मैंने एक्सेस निकाला, माइनस किया दोनों को, तो 110 का गुडविल आया, ये देखो ये, तो 110 का गुडविल एंड बी के केस में 90 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व, दोनों का नेट करेंगे और वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ रहा है। तो अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट इज बिफोर अमालगमेशन बैलेंस शीट, दैट इज ये वाली, ये दोनों की ये बैलेंस शीट ए और बी की। तो अभी ए और बी दोनों भी अंदर आ रहे हैं, सी लिमिटेड इज टेकिंग ओवर ए एंड बी, बोथ ऑफ देम राइट। तो अगर दोनों को टेक ओवर कर रही है सी लिमिटेड, तो इन दैट केस क्या होगा, सी लिमिटेड की बैलेंस शीट क्या होगी, इन दोनों का एडिशन,
इन दोनों का एडिशन मैं सिंपली यहाँ पे भी बना सकता हूँ सी लिमिटेड का बैलेंस शीट। देखना है आपको, देखो यहाँ पे भी बना सकते हैं अपन। लाइक देखो एसेट्स आर मियरली एडिशन ऑफ टू, दोनों का एडिशन होगा 550 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 950, देन 350 प्लस 250 ये हो गया 600, 150 प्लस 50 ये हो गया 200, ये हो गया 550, ये हो गया अगेन 550, ये हो गया 150 एंड ये हो गया 500। एसेट्स बिकेम मियरली एडिशन। लाइबिलिटी साइड ये 60 प्लस 30 में डायरेक्टली नहीं करूँगा बिकॉज ये 60 और 30 मैंने 60 और 30 नहीं लिया, इसको मैंने 40 लिया है, इसको मैंने 20 लिया है, तो ये मेरा बन जाएगा 60। देखो जर्नल एंट्रीज देखो, एक्स एंड वाई का वो कैलकुलेशन देखो जो पीछे किया है। ये 270 प्लस 20 कौन सी लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये देखो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो 270 प्लस 120 कितना हो गया 390 आई गेस, 390 हो गया ये। देन 150 प्लस 70 ये हो गया 220। तो ये क्या किया मैंने, सारे एसेट्स लिख के लिए, सारे लाइबिलिटीज लिख के लिए, जो मैंने सेकंड एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट करता हो, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट करता हो एंड बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट करता हो, तो वो मैंने किया एंड उसका रिजल्टेंट और एक बना मेरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। दो बने, दो कंपनीज थे इसलिए दो बने, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एक के केस में गुडविल बना, दूसरे के केस में कैपिटल रिजर्व बना। अगर दोनों को मैंने नेट किया तो ज़्यादा कौन सा है, गुडविल ज़्यादा है, 110 का गुडविल है, ये रहा 110 का गुडविल है माइनस कैपिटल रिजर्व 90, तो डिफरेंस आया 20 रुपीज़ का गुडविल, 20 रुपीज़ का गुडविल, जो कि मैं एसेट साइड पे लिख दूंगा, जो कि मैं एसेट साइड पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, कितना का 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का। तो ये बन गई मेरी सेकेंड एंट्री के इफेक्ट्स, डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिए मैंने। एंट्री कहाँ पे पास की, इन योर माइंड, फाइन। नाउ थर्ड एंट्री क्या पास करते हैं, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट से बेसिकली लिक्विडेटर को पेमेंट कर डालते हैं। पेमेंट कितना करना है, इन दिस केस हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला था, देखो यस 1560 यहाँ पे एंड 1200 राइट, इतना पेमेंट करना है राइट। तो 1650 प्लस 1200 टोटल इतना का पेमेंट करना है। एंड कैसे डिस्चार्ज करना है परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय वे ऑफ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कैसे कैसे पेमेंट करना है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो अभी हमने पूरा कैलकुलेशन रब किया है, जो जो यहाँ पे किया था पूरा कैलकुलेशन रब किया है, तो हमें फिर से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। मेरे पास यहाँ पे स्पेस का लिमिटेडनेस है इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन आपको रब करना है। अभी लेट अस सी, मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। हमने देखो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स हमने कितने इशू किए थे अभी तक, जनरल रिजर्व को कुछ नहीं करना है अभी। न्यू थर्ड एंट्री लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं। टू शेयर कैपिटल में इक्विटी के केस में कितना करूंगा, देखो इक्विटी के केस में मैंने इसको 5 शेयर इशू किए थे, इसको 4 शेयर इशू किए थे राइट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे, 8 लैक्स इंटू 5 मेमोरी प्लस 7.5 लैक्स, ये वाला 7.5 लैक्स इंटू इसको 4 शेयर इशू किए थे इंटू 4 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 70, टोटल 70 लैक्स के शेयर्स इशू किए थे एंड हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ था। तो टोटल मेरा बन गया 700 लैक्स का इक्विटी शेयर कैपिटल बन गया राइट। 70 lakh shares into 10 rupees, 70 lakh shares into 10 rupees right। at the same time 70 lakh shares पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, वो कितना था 70 lakh shares into 20 रुपीज़ राइट। अभी ये हो गया इक्विटी शेयर की बात, प्रेफरेंस शेयर की बात। यही कैलकुलेशन सारा आपने ये यहाँ पे हमने वर्किंग में किया था, थोड़ा पीछे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने वर्किंग किया था ना उसमें क्या था, गिव मी अ मिनट फाइन। यही कैलकुलेशन हमने सारा यहाँ पे किया था। अभी प्रेफरेंस शेयर के केस में इक्विवेलेंट नंबर इशू किया है, तो इनको 300 लाख और 200 लाख मतलब 3 लाख और 2 लाख थे, फिर से 3 लाख और 2 लाख ही किया, बट अभी 150 रुपीज़ पे किया, 150 रुपीज़ पे किया, मतलब 3 लाख को हमने 3 लाख शेयर्स ही रखे, 3 लाख को हमने 3 लाख शेयर्स ही रखे। परचेज कंसिडरेशन में यहाँ पे होगा, देखो ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स
300 लाख के थे, 100 रुपीज़ का था, तो टोटल 3 लाख थे इंटू 150, मतलब फिर 150 को इशू किया है। तो शेयर कैपिटल कितना है उसमें से, 100 रुपीज़ ही है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इतना ही रहेगा, 100 का शेयर 100 को ही रहा, ये 100 का शेयर 100 को ही रहा, 300 लैक्स एंड 200 लैक्स ही रहेगा। फाइन, तो ये 300 लैक्स प्लस ये 200 लैक्स टोटल मिला के कितना हुआ सी लिमिटेड के बुक्स में, 500 लैक्स हुआ, राइट। एंड उस पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना आया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम शेयर्स कितने इशू किए, 3 लैक्स और 2 लैक्स, टोटल 5 लैख, 5 लैख शेयर्स इंटू उस पर 50 रुपीज़ का प्रीमियम था, 50 रुपीज़ का प्रीमियम था। तो अगर मैं ये सब जोड़ दूँ, ये सब जोड़ दूँ, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा, चेक चेक, इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा ये 700 लैक्स, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेगा ये 500 लैक्स, एंड मेरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बनेगा ये 70 लैक्स इंटू 20 एंड 5 लैक्स इंटू 50 करता हूँ मैं, 70 लैक्स इंटू 20 मेमोरी प्लस एंड 5 लैक्स इंटू 50 मेमोरी प्लस, 1650, इतने का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बना, इतने का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बना। समझा? आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। ये हो गई मेरी थर्ड एंट्री, ये हो गई मेरी थर्ड एंट्री, एंड देन एवरीथिंग खत्म, बाकी सब खत्म हो गया। 3 एंट्री तो पास करते हैं, 3 एंट्री तो पास करते हैं। एंड एक लास्ट एडजस्टमेंट, एक लास्ट एडजस्टमेंट जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के रिगार्डिंग बताई है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी टेकन ओवर, टेक ओवर करना है एंड परचेस मेथड है, टेक ओवर करना है रिजर्व एंड परचेस मेथड है, क्या यूज़ करेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे एंट्री पास, अगर रिजर्व को टेक ओवर करना है तो रिजर्व हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट करना होगा अपने बुक्स में भी। तो देखो कितना है अमालगमेशन, सॉरी कितना है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, 50 और 50 दोनों के बुक्स में, तो टोटल 100 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अपने बुक्स में, सी लिमिटेड के बुक्स में भी बनेगा। फाइन, तो 100 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा 100 इन बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, एंड इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 100, ये जो आया ना ये क्रेडिट इफेक्ट है, तो डेबिट इफेक्ट जाएगा यहाँ पे गुडविल के साथ में, और एक चीज़ जुड़ जाएगी एसेट्स में, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट 100, तो बैलेंस शीट तभी तो टैली होगी, दो इफेक्ट दोगे तो। फाइन, तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड रेडी, चेक, चेक करो, दिस वुड बी द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। सॉरी, एक अमाउंट रब हो गई है यहाँ से, ये 220, नाउ चेक, नाउ चेक, टोटल ले लो, 700 प्लस 500 प्लस 1650 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 390 प्लस 220, that comes to 3620, 3620, एंड नीचे कितना आ रहा है, नीचे वाला आएगा, नीचे वाला आएगा 2000 प्लस 1500, टोटल एसेट्स मैंने लिए सारे, ये प्लस ये दोनों की टोटल ली वही आ जाएगी ना, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो सेम ही है, प्लस ये ऊपर वाले दो आइटम्स, ये ऊपर वाले दो आइटम्स। फाइन, ये था 100 रुपीज़, ये था गुडविल अपना था, कितना था गुडविल 20, एंड दिस वाज 950, तो ये 120 ऐड हो जाएंगे, सो 2000 प्लस 1500 प्लस 120, 3620, 3620 पे बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही है। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है कि कैसे बनानी है बैलेंस शीट। ये जो इफेक्ट्स अपन कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो सिर्फ आपके माइंड में, या फिर आपको चाहिए तो आप रफ वर्क में कर सकते हो, आंसर में प्रेजेंटेशन के लिए आप ये कर सकते हो। ये बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे बनानी है, ये देखो 3620 पे टैली हो रही है उनकी बैलेंस शीट। देन ये नोट्स बनाए हैं वो भी बना लेने हैं आपको, एंड ये तो हमने भी किया, ये पीसी तो निकालना ही पड़ता है, ये नेट एसेट्स भी निकालने पड़ते हैं, इसीलिए तो इनका डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व यहाँ पे ये आता है। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हैं, वो भी हमने सब बनाए थे, सब रब हो गया है अभी। फाइन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को टेक ओवर करना है तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा, बिकॉज परचेस मेथड है। अगर ये परचेस मेथड नहीं होता तो जनरल रिजर्व के थ्रू बनता, तो एंट्री पास होती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जो नया रिजर्व बनाना है उसको क्रेडिट करने का, डेबिट किसको करने का, आई एम सॉरी,
जो नया रिजर्व बनाना है उसको क्रेडिट करने का, एंड डेबिट किसको करने का, जनरल रिजर्व को करने का। या फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व को कब करोगे, जब जब मर्जर मेथड होगी, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। एंड इसको अमालगमेशन एडजस्टमेंट को कब करोगे, जब परचेस मेथड होगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में ये होगा, बिजनेस आएगा। फाइन, आई होप आपको समझा है। जर्नल एंट्रीज तो मैंने पास ऑलरेडी की है, उसमें भी लाइक इफ़ यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो जर्नल एंट्रीज क्या चीज़ है। जर्नल एंट्रीज तो अभी भी किए हमने, सिर्फ लिख के नहीं किए। एंड कल अकाउंटिंग वाले लेक्चर में पूरा जर्नल एंट्रीज भी किया था। So I hope you are sorted with this. I hope you are sorted with accounting in the books of transferee with both the methods. दोनों मेथड में डिफरेंस नहीं है, एंट्रीज सेम ही है, एंट्रीज सेम ही है एक्सेप्ट दिस थ्री डिफरेंसेस। एक तो अमाउंट्स कौन से अमाउंट पे होगा, मर्जर मेथड होगा तो बुक वैल्यू पे होगा, एंड परचेस मेथड होगा तो फेयर वैल्यू पे होगा। सर इस केस में परचेस मेथड था तो फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन नहीं थे, तो वी अज्यूम बुक वैल्यूज आर फेयर वैल्यूज। देन ये डिफरेंस जनरल रिजर्व में जाएगा, एंड रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर होंगे तो यहाँ पे जनरल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होंगे, एंड यहाँ पे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व के थ्रू होंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। थैंक यू।